Video is uploading or showing in my YouTube channel as divided into part wise due to long video. No censor or cut of video. The full video will be uploaded as part wise I recorded on the date. 23. Part 4 of the video. A direction to those officers to keep available themselves on the site. However, due to absence of some committee members and those officers, further survey was not carried out. उसका बाद सर 7 नंबर में बोलता है White Order Number DCIC Judicial 1 2019 dated 12/2/2019. Again, survey and re-verification date was fixed on 15/2/2019 with clear notice to 3 officers of Urban Development and Housing to be present on disputed land. Accordingly, 3 officers or Urban Development and Housing Department made available before the committee members at the disputed site on 15/2/2019. And on the basis of statement of the officers of Urban Development and Housing Department, we have started survey work by taking 20 meters away from outside the check gate, that is RP gate, sir, of police एज साउथ पॉइंट यहाँ में सर जियो कोऑर्डिनेट ले रहा है, यहाँ में कोऑर्डिनेट पॉइंट ले रहा है यहाँ में ना. तो टेकिंग 20 meters away from outside the check gate, RP gate of police एज साउथ पॉइंट. Then we follow the upwards natural range एज साउथ boundary up to EV Relay Center. EV Relay Center colony at the point of YD Tongchi's residence. ये ऊपर में सर वो. उसका बाद where this point was taken as a west point. West point में लिया गया है उसको. From the colony we have followed edge of ridge and along the boundary of residence of Taloputam, that is you and Itanagar park up to the Governor helipad, which is the north point. ये north point में लिया गया. From Governor helipad point we have followed the Rups Nala. वहाँ में एक नाला है सर उस साइड में, तो उसको फॉलो किया. That coming from helipad से आता है वो. It's eastern boundary इसको लिया गया. Following the Nala, we have taken the water tank of Julang village at eastern south point. उधर में एक water tank है नीचे में Julang village का. From here we have taken the boundary upwards and it touches the natural range that joins the RP gate point of southern boundary. तो RP gate को वहाँ से boundary join करता है. तो 8 number में that the verification, re-verification and measurement of the land of the police started on 23/2/2019. Same could not be concluded immediately due to unavoidable circumstances like Prime Minister visit, PRC strike issue, general election, rainy season. ये सब timely नहीं हो पाया था सर. However, the committee with field staff after arduous effort finally succeeded to conclude the re-verification and measurement of the land of the police department on 6/8/2019. तो conclude हुआ 6/8/2019 में conclude होगा. One of the reasons of the delaying of verification work was that the police department representative initially participating the board. Later on, they used to show some preoccupied program whenever informed them about verification work. To exhaust their program, we had to postpone our program many a times. Ultimately, they informed that they will not be participating with the board verification if the area allotted to them is not given back intact. It was an impossible demand made by them. No board member can be placed and demand other than performing court direction. ये भी reason दिया गया है सर. Honoring the decision of the Honorable High Court order
the board had to continue the verification work and completed the text on the mentioned date above. तो यहाँ में सर जो फाइंडिंग्स है कमिटी का जो फाइंडिंग्स को भी पढ़ के सुना दे. After so many spot verification in presence of parties, taking statement of necessary parties and witnesses, taking into account the available official records of the matter, and after re-verification and re-measurement of the land, the ultimate findings of the committees are as follows. The number one, sir, the present land of the police department was first allotted to urban department, Government of Arunachal Pradesh, for construction of housing colony for BPL under centrally sponsored scheme White Allotment Number DPGL 399 dated 8/11/2002. तो second number reason जो है, the area of land acquired by Department of Urban, Government of Arunachal Pradesh in year 2001 has shown 13,75,980 square meters, the total area. But after re-verification of the actual land acquired from public has been found 7,96,000 square meters, and number of 13,75,980 square meter of land is found in possession of department. ये जो सर ये है नो लिखा है इसमें, जो 13 लाख का वो लोग नहीं है बोला है. उसका बाद 3 नंबर में, द लैंड अलॉटेड टू डिपार्टमेंट अर्बन डिपार्टमेंट Government of Arunachal Pradesh, White Allotment Number so and so, was acquired by the Government of Arunachal Pradesh from private parties. White Agreement dated so and so 6/12/2001 by pay some lump sum compensation and additionally with assurance of job and contract works preference to those persons. ये है सर. उसका बाद 4th number में, that as many as 22 persons, that is landowners, were paid lump sum compensation by Government of Arunachal Pradesh for acquiring the land for Urban Development Department, Government of Arunachal Pradesh, which is now land of the Police Department. And the name of Sri Kipa Nyakya, complainant, does not find place in the list of 22 official list of landowners who received lump sum compensation from Government of Arunachal Pradesh. ये भी एक रीजन दिया है सर. उसका बाद 5th नंबर में, when the land was acquired by the urban department, Government of Arunachal Pradesh, the survey and demarcation of acquired land, that is present land of police department, was carried out under the supervision and personal presence of officers of urban development and housing department, namely Sri Tame Tabing Tar FOA, Sri S. Singh, Assistant Town Planner, now Director Town Planning, and Sri Taring Darang UPO, now Chief Engineer Urban Development. 6 number में sir, that as per the statement of the officers of urban development housing, Sri Tame Tabing, FAO, Sri S. Singh, Assistant Town Planner, and Sri Taring Darang UPO, who personally presents and supervise the survey and demarcation of land for acquisition in year 2001, informed that the land of Sri Kipa Nyakya was never acquired by the Urban Department and Housing Development. Further, they informed that the house of Sri Kipa Nyakya, located just eastern side of natural Nala, that is Roach Nala, was used for resting and the fooding of Committee of Survey team at the time of survey and demarcation of land for acquisition of land for department. And same house still exists there. And during the acquisition, the committee approached and tried to convince Sri Kipa Nyakya to give his land to the Government of Arunachal Pradesh, which Sri Kipa Nyakya declined
that means not accepted. He was not ready to give his part of land. So ये सर कमिटी का फाइंडिंग्स लो. और 7 नंबर में सर, that the land acquired by the Urban Development and Housing Department, Government of Arunachal Pradesh, from private parties in year 2001 was allotted to them, wide allotment number so and so, and same was again re-allotted to police department, wide number DG GL 3 oblique 99-1 dated 31/10/2013. 2013 को पुलिस डिपार्टमेंट को रीएलोकेशन हुआ था सर. तो कंक्लूजन में सर ये है, बेस्ड ऑन द अबव फाइंडिंग्स, मोर पर्टिकुलरली द फाइंडिंग्स एंड रीजंस, ground measurement of land of the police department mentioned above, starting from check yet around all the points mentioned at serial number 7 above is 7,96,000 approximately. Ye tha sir. So committee has found 7,96,000 square meters approximately to be re-allotted to police department. The land of Kipang Yukya, complainant Kipang Yukya, does not fall under allotted land of the police department. After the completion of the process of this case, the police department may be erected boundary pillars along the mentioned boundary points. ये जो कमिटी का सर जो रिपोर्ट है, ये जो उसका बाद सर क्या हुआ है, subsequent development was taking place. Being agreed with this committee report, the police department has approached the Honorable High Court that this report is not satisfied. So the police department has approached and filed a writ petition before the Honorable Guwahati High Court, praying that the committee report is not satisfied and this committee report may be set aside. So accordingly, after hearing of the case, the Honorable Guwahati High Court has passed an order. ये सर ऑनरेबल गुवाहाटी हाई कोर्ट जो ऑर्डर पास किया है, इसमें वो लोग एक रिट पिटिशन डाला था, ये कमिटी का रिपोर्ट को सेटिस्फैक्शन नहीं होके. तो उसका बाद क्या हुआ है सर, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने जो केस फाइल किया था रिट पिटिशन, उसका WPC नंबर जो 292/2020, तो उसको हाई कोर्ट ने आफ्टर हियरिंग का बाद ऑर्डर पास किया है. इसमें सर हम ऑपरेटिव पोर्शन को सिर्फ पढ़ेगा क्या, बहुत लंबा है. यहाँ से पढ़ेगा, पैरा 6 से पढ़ेगा. In aforesaid backdrop, this court under this order dated 2018 passed in WPC number so and so, directed a fresh verification report to be done by the committee constituted by High Court, and to find out as to whether the land of petitioner falls within the land that was allotted to Urban Development Department previously and re-allotted to Police Department later. In view of the aforesaid direction, a committee was constituted by the government as follows. The Additional Deputy Commissioner, Itanagar Capital Complex, Itanagar, as Chairman, DLSO, Itanagar Capital Complex Member, Director Urban Development and Housing, Government of Arunachal Pradesh is representative, not below the rank of Joint Director Member, Representative of Director General of Police, not below the rank of Superintendent of Police, ये भी मेंबर था. डायरेक्टर लैंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट और हिज रिप्रेजेंटेटिव नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट डायरेक्टर मेंबर. इन द कॉन्टेक्स्ट द कमिटी डिड ए वेरिफिकेशन एंड सबमिटेड द रिपोर्ट विथ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स. जो अभी पढ़ा था क्या में है, ये जो रिप्रोड्यूस किया गया उसको नहीं पढ़ने से भी हो जाएगा. उसका बाद thereafter on the basis of aforesaid report, a speaking order was
passed by the chairman cum additional deputy commissioner Itanagar Capital Complex, which is impugned in WPC number 292/2020 ये इसको चैलेंज किया था सर. तो WPC number 349 AP 2010 has been filed by the respondent number 5 in WPC number 292/2020. The writ petition was filed assailing a notice dated 7/12/2020 issued by the Commandant 4th IRBN BHQ Julie Itanagar, whereby the petitioner was asked by the police department to stop the dismantle the illegal constructed structures illegally constructed over police land. The Director General of Police has challenged the verification report. The consequent order on different grounds, including raising dispute as regards the actual revenue record relied on the committee and the bias of the chairman of the committee. From the pleading of these writ petitions, it is seen that the police department, in spite of report filed by the committee constituted by the court, kindly note, sir, is disputing such report and claiming ownership over the plot of land. On the other hand, the respondent number 5 in his writ petition is aggrieved by a notice of eviction, and he also finds over the subject land. The court, after perusal of the material available on record, it is of the view that as a report has already been submitted by the committee constituted by the High Court, wherein it has been concluded that length of respondent number 5 does not hold under the allotted land of police department. So here is the respondent number refers to Kipang Yukya, sir. To uphold the challenge, this court shall have to make an endeavor to resolve disputed questions of facts, and to arrive a conclusion that the report is perverse and the police department is the owner of the subject land. Such determination shall not be permissible in exercise of its power of judicial review, in as much as to negate such report. The examination of witness material evidence may also be necessary. In the aforesaid backdrop, if the petitioner police department is still aggrieved against the impugned report and the order, they shall be at liberty to seek a declaration as regards ownership of their land, as well as seek eviction of the respondent number 5 approaching appropriate civil court. In view of the aforesaid, the writ petition preferred by the police department, that is WPC number 292 AP 2020, stand dismissed. So their writ petition was dismissed, stand dismissed, and subsequently, however, the police department, as observed herein above, shall be at liberty to approach the competent civil court seeking declaration of their right, title and interest, and or recovery of possession of the disputed land, if so advised. In event of such civil suit is filed, the civil court shall not be influenced by any observation made in this petition or made in order dated 6/08/2019, passed by the Additional Deputy Commissioner Itanagar Capital Complex. And in the impugned report, the civil court shall deal with the subject in accordance with law on the basis of evidence and material that may be produced by the contesting parties. As report suggests that the petitioner is not occupying any police land, therefore the impugned notice dated 07/2012-2020 issued by the Commandant 4th IRBN Julie Itanagar stands set aside and quashed. However, it is made clear that the decision shall not be treated as an assertion of the right, title and interest of the petitioner, namely Kipang Yukya, over the subject property, and same may be
determined in the appropriate forum if challenged by the police department. With the above aforesaid observation, these two writ petition stand disposed. So इसमें सर ऐसा है कि ये रिट पिटिशन ये लोग ने चैलेंज किया है, कमेटी का रिपोर्ट गलत है वो, तो इसको हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन डाला है कि आप अगर गलत है तो आप सिविल कोर्ट में जा सकता है, लिबर्टी तो दिया है। तो हम लोग सोचता है कि इसको हाई कोर्ट जो जब कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करके बोला है, कमेटी ने बोला है कि दीपक यज्ञ का जमीन को कभी लिया ही नहीं था, जब लैंड एक्वायर किया था उस समय नहीं लिया है। क्लियर ये है उसका स्पीकिंग ऑर्डर में क्लियरली लिखा है कि उसका जमीन कभी नहीं लिया है। तो इसमें अब अभी जो ये इसमें क्या है कि सर एग्रीमेंट जब इनिशियली जब एग्रीमेंट हुआ था वो प्राइवेट पार्टी से हुआ था, दैट मीन्स मतलब ये जमीन जो है प्राइवेट लैंड था। अगर ये प्राइवेट लैंड नहीं था तो प्राइवेट पार्टी से आप क्यों एक्वायर करेगा? अगर गवर्नमेंट लैंड था तो अगर वो जो गवर्नमेंट का एक नोटिफाइड लैंड था तो विद इन कैपिटल एरिया का रीजन का अगर नोटिफाइड एरिया था अभी तो आप जमीन को एक्वायर करना ही नहीं था, जबकि वो गवर्नमेंट लैंड इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी एक्वायर्ड फ्रेंड। सो इनिशियली दिस लैंड वाज एक्वायर्ड फ्रॉम प्राइवेट पार्टीज। सो इसलिए वो that means that the land belongs to a private individual। ये ऐसा है सर। तो इसलिए यहाँ में जो डिपार्टमेंट लोग जो पुलिस डिपार्टमेंट जो लैंड अलॉटमेंट और मैप जो कैडिस्ट्रियल मैप शो कर रहा है इसमें कोई ऑथेंटिक नहीं है, काउंटर साइन नहीं है, किसी डिप्टी कमिश्नर का काउंटर साइन नहीं है। तो उस समय सर अभी आपने एक फाइल से एक पढ़ के सुनाया है कि एक फाइल नोटिंग है, वो डिप्टी कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर का फाइल नोटिंग है। उसने जब लैंड को एक्वायर करते समय इंक्वायरी किया है कि वेदर दिस लैंड बिलोंग्स टू एनी प्राइवेट लैंड और वेदर इट बिलोंग्स टू गवर्नमेंट लैंड और ए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आता है कि नहीं आता है। तो उसमें बोला है कि वो नहीं आता है बोला है, लेकिन फिर भी वो प्राइवेट पार्टी से एक्वायर किया है। दैट मीन्स ये जो लैंड जो प्राइवेट इंडिविजुअल का था इनिशियली मतलब ना, तो इससे लिया गया है। अभी मेरा जो प्रयास जो मेरा लर्नेड एडवोकेट जो फ्रेंड जो बोला है कि एग्रीमेंट ड्रॉ किया था 2001 को, तो वो एग्रीमेंट में कंडीशन डाला गया था, कुछ लैंड कंपनसेशन का बात डाला नहीं है, उसमें कोई कंपनसेशन देगा बोल के ऐसा डाला नहीं है, लेकिन कुछ चीज काम सम देगा वो सब बात है। तो इसमें वो सब बात को कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, दैट इज कंप्लीटली अ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट को ब्रीच तब होता है तो वो इन्फोर्स नहीं कर सकता है जो ब्रीच हुआ है। इसमें डिपार्टमेंट जो एग्रीमेंट को ब्रीच किया है तो एज पर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट का हिसाब से नहीं किया गया है। तो उसमें सर इसमें अभी जो मेरा फ्रेंड जो एक ये पॉइंट आउट किया है, इसमें 26 आदमी का लैंड कंपनसेशन लॉमसम मतलब किया गया था उस समय में। तो उस समय में अभी ऐसा देखने से ये आदमी लोग जो है यहाँ का जो जुलांग का जो ओरिजिनल आदमी लोग है, ये लोग ना पहले का जो आदमी लोग है, यहाँ ऐसे देखने से हम लोग नाम को पढ़ने से यहाँ में 26 आदमी में से हम पढ़ के भी सर आपको सुना देगा। इस समय नंबर 1 में लीका हाली था, उसका बाद श्री नीलम तानी था और लिका निकम था, लिका सरबंग, लिका यालुक और कोलो लालिंग और कोलो तादुंग, लोकम तकम, उसका बाद गोलो तकम, उसका बाद तबा काया, गोलो बागंग, गोडक तमा, संगू तसंग, तबा नानू, उसका बाद संगू इचो, काबक यकम, दगमे यानियर, चारू तलिंग, गोदक ततक, गोडक तकियो,
Takam Tanyo, Golo Rangke, Golo Nikam, Golo Tanyang, Golo Tagung, गोलो न्याकम, ये लोग जुलम का जो ओरिजिनल आदमी है सर। दैट मीन्स आपका जो अभी जो जमीन है डिस्प्यूटेड लैंड है, ये इससे मतलब पता चलता है कि ये डॉक्यूमेंट है, ये हम लोग का डॉक्यूमेंट नहीं है, ये आपका ऑफिस का डॉक्यूमेंट है। हम लोग को ये आरटीआई से मिला गया है ये डॉक्यूमेंट। तो इसमें इससे देखने से पता चलता है कि ये जमीन जो ओरिजिनली प्राइवेट आदमी का था। तो ये कैपिटल रीजन का जो कैपिटल एरिया का जो नोटिफाइड एरिया में नहीं था, नहीं पड़ता था ये, इसलिए इसको एक्वायर किया गया है सर। तो इसलिए ये जो है प्राइवेट लैंड है, जो भी बोलो अभी रिकॉर्ड का बात बोलने से, तो रिकॉर्ड बोलता है कि ये प्राइवेट लैंड है। तो इसको आप सर अभी तो ऐसा पिटिशन डालते रहने से, कोर्ट केस करते रहने से भी नहीं होगा। मेरा हिसाब से अंडर योर लीडरशिप सर, हम तो रिक्वेस्ट कर रहा है कि इतना पब्लिक को इतना दिन से केस करके आज तक कुछ नहीं मिला है, ना पुलिस को एक कुछ मिला है, नहीं मिला है, ना पब्लिक को मिला है। इतना सफर पब्लिक पूरा प्रॉब्लम हो रहा है, फिर लिटिगेशन का ऊपर लिटिगेशन हो रहा है। ऐसा होने से ये कभी सॉर्ट आउट नहीं होगा सर। तो इसलिए हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, आप जो आपका लीडरशिप का अंदर में अच्छा से वेरिफिकेशन करके, जो अभी जिसका पोसेशन में नहीं है उसको तो बोलने के लिए थोड़ा तकलीफ लगता है, जो पोसेशन में है लैंड का ऊपर जो पोसेशन में है, तो इसको थोड़ा आप काइंडली सर्वे करके देख देने से ठीक है। क्योंकि इसको ऐसा करते रहेगा तो लिटिगेशन का ऊपर लिटिगेशन, कल को सिविल कोर्ट में कोई सिविल सूट डाल देगा, टाइटल सूट डाल देगा, कितना साल पेंडिंग होगा किसी को मालूम नहीं है। अब हम सब पूरा मर जाएगा, कोई डिसीजन नहीं आएगा, तो उसका मतलब अब जस्टिस नहीं मिलेगा तो क्या मतलब है केस फाइल करने का ना। तो इसलिए इसको करने से सर आप सर्वे करके, अच्छा से सर्वे करके, अगर सेटिस्फेक्शन है होने से आप इसको डिमार्केट प्रॉपरली, पुलिस को भी जो एग्जिस्टिंग ये लोग अभी फिजिकल पोसेशन में है उसको देख के सर्वे कर देने करके डिमार्केशन प्रॉपरली कर देने से ठीक है, कभी इंक्रोच नहीं होने के लिए। तो हम तो कीपांग यज्ञ का हिसाब से बोलने से तो सर हम लोग का तो ऑलरेडी कमिटी का जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया, वो भी ऑनरेबल हाई कोर्ट का कमिटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, तो उसका तो कोई अभी तक तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम तो ऐसे सोचता है सर, इसको तो आप काइंडली आप डिमार्केट कर दीजिए इसका हिसाब से, जो स्पीकिंग ऑर्डर का हिसाब से, हाई कोर्ट का ऑर्डर का हिसाब से, तो पुलिस डिपार्टमेंट और हम लोग का बीच भी और झगड़ा नहीं होने से अच्छा है। तो ये तो स्टेट तो एक वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर स्टेट तो पब्लिक के लिए, पब्लिक का वेलफेयर के लिए बैठा हुआ है। अभी पब्लिक को इतना तकलीफ दे रहा है, अब पब्लिक नहीं बैठेगा अभी तो पुलिस का भी तो, पुलिस किसके लिए? पब्लिक को प्रोटेक्शन देने के लिए, पब्लिक को तंग करने के लिए नहीं है पुलिस, पब्लिक को प्रोटेक्शन देने के लिए, सर्विस देने के लिए। अभी पब्लिक और पुलिस लड़ते रहेगा तो नहीं होगा सर। इसलिए आपका लीडरशिप में आई होप दैट ये काम को सर आप ही कर सकता है, बाकी नहीं कर पाएगा। आपका लीडरशिप में इनिशिएट करके उसको डे टू डे आप ये करने से भी अच्छा है, सबका सुन के आप वो करने से अच्छा है। नहीं तो कोई बाद में आएगा, कोई हिम्मत नहीं होगा डिसीजन लेने में, ऐसा हिम्मत नहीं होगा, फिर पेंडिंग रह जाएगा, ना पुलिस कुछ मिलेगा ना पब्लिक कुछ मिलेगा, ऐसे होते रहेगा सर। इसलिए सर आप इसको ज्यादा भी मतलब डॉक्यूमेंटेशन ये सब को नहीं देख के सॉर्ट आउट करने से अच्छा है बस। ठीक है। अभी और कोई एडवोकेट रिप्रेजेंटेटिव नहीं होने से है क्या कोई एडवोकेट? अच्छा, पानी मेरा था, हो जाएगा, पी लेगा। सामने माइक। 27 जनवरी 2022 में सर आपने एक ऑर्डर पास किया था, जहाँ पे ये लिखा है कि ये जो 27 जनवरी 2022 में एक ऑर्डर पास किया था सर आप, जहाँ आपने ये कहा था कि ये जो एरिया 1.6 किलोमीटर इट बिलोंग्स टू द जोनांग विलेज।
तो इस बात से भी साबित होता है कि ये जो अपर जोरंग विलेज का जो एरिया है, इसने हमने कोई इंक्वेस्ट नहीं किया है और हम लोग राइटफुल ओनर्स है। नाउ इफ यू लुक बैक एट द डॉक्यूमेंट्स दैट वी हैव, सर एक एलपीसी है जिसने चारू तातुंग ने अप्लाई किया था 1998 में। 1998 में चारू तातुंग ने एक एलपीसी अप्लाई किया था, वे बैक इवन बिफोर द लैंड अलॉटमेंट। आपका यूडी को तो 2002 में अलॉटमेंट दिया गया है और ये आपका आयरबैन को 2013 को। बट हमारा एक जो एलपीसी का एप्लीकेशन जो है 1998 का है, तो ये भी क्लियर कर साबित करता है कि ये हमारा बस्ती है। आप लोग तो बाद में आए हैं ना, अभी आप लोग बाद में आके अभी आके हमारा बस्ती वालों को ही भगा देने से दिस इज नॉट फेयर। तो फिर दूसरा बात यह है कि आई जस्ट रेस्ट्रिक्ट माय सेल्फ टू द टेक्निकल इशू जो मैं पहले रेस्ट कर रहा था। क्या ये जो आयरबैन का जो लैंड अलॉटमेंट है, जिसका रिकॉर्ड लैंड डिपार्टमेंट में है ही नहीं, जिसका जो लैंड डिपार्टमेंट में जो मैप है ही नहीं, क्या इसका अलॉटमेंट को वैलिड मान सकता है? दिस इज टोटली इनवैलिड। सेकेंड पॉइंट, when the terms of the agreement in land donation has been breached, then क्या उनको जो आयरबैन को जो लैंड जो अलॉट किया गया है, क्या वो इलीगल नहीं है? वो भी इलीगल है। That illegality of allotting land to the re-allotting the land to the IRBN has been conducted by the officers of our state, जो लैंड डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स से, एंड इवन बाय द ऑफिसर्स ऑफ योर ऑफिसर। सो इसलिए मेरा थर्ड पॉइंट ये है कि 2001 का जब क्लियरली जो एग्रीमेंट बनाया गया है कि जहां में आप लोगों ने मिट्टी दिया है डिपार्टमेंट को, अगर 2001 में ऐसा एग्रीमेंट बनाने के बाद कोई डिपार्टमेंट ऑफिसर नॉन एनक्रोचमेंट सर्टिफिकेट देता है सर, देन दैट इज आल्सो रॉन्ग। दैट मींस दैट उस ऑफिसर ने जिन्होंने लैंड सर्वे किया है, एग्रीमेंट करने के बाद भी अगर वो ये कहता है कि देयर इज नो लैंड एनक्रोचमेंट सर्टिफिकेट, नो लैंड एनकम्बरेंस, तो वो भी गलत है। वो ऑफिसर ने भी ड्यूटी सही से नहीं किया है। तो बेसिक ऑन ऑल दिस पॉइंट्स सर, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो उन लोगों को जो लैंड अलॉटमेंट दिया गया है उसे कैंसिल कर दीजिए और हमारे जो बस्ती वालों को अपना राइटफुल ओनर दे दीजिए सर। और जैसे मैं सर पहले बोल रहा था कि जब सीपीसी ही कहता है कि जब गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में केस होता है, तो सीपीसी कहता है कि कोर्ट को पूरा कोशिश करना चाहिए कि सेटलमेंट में आ जाए। सर हमारे आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस इश्यू को ज़्यादा आगे नहीं ले जाके, ये जो पब्लिक के भलाई के लिए और इवन उनका भलाई के लिए एक रीजनेबल एमिकेबल सोल्यूशन में लाने से बेहतर होगा। क्योंकि सर हम सब देख रहे हैं कि इवन जो बाहर का रिफ्यूजीज है, उनको भी सर सरकार लैंड दे रहा है या बेचने के लिए जगह दे रहे हैं। तो जब इवन रिफ्यूजीज को जब बेचने के लिए जगह मिल रहा है सर, तो क्या हम जो अपना स्टेट का जहां हम सदियों से बरसों से बेच रहा है, क्या हमें बेचने का हक नहीं है? तो सर ये सब पॉइंट को ध्यान रखते मेरा से आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इसी को आप काइंडली एक सोल्यूशन ला दीजिए और एक प्रॉपर बाउंड्री डिमार्केशन कर दीजिए, जहां बस्ती वालों को भी अपना बस्ती में रहने दीजिए और जो आयरबैन डिपार्टमेंट आप उनको भी जहां के उनको जो अभी तक है उसको दे दीजिए सर, विदाउट एनी फर्दर प्रॉब्लम सर। थैंक यू। मेरा ख्याल से आपको जितना बोलना था बोल दिया है। तो हम पुलिस का जो एडवोकेट आया हुआ है, आप या समय ले सकता है या आप अपना पक्ष रख सकता है। आप समय ले सकता है। हेलो, मेरा नाम गगुम लोलन है, पुलिस डिपार्टमेंट के स्टैंडिंग काउंसिल है। तो आप तो सब जानते ही है कि पहले बोला भी है हर कोई कि 2001 में यूनियन हाउसिंग जो है इसको एक्वायर किया है। इसका मतलब घर बनाया है। अभी जैसे बहुत सारे स्पीकर बोला है कि ये 4 फैमिली के लिए घर को स्टेब्लिश करने के लिए यहाँ बनाया बोल के। तो हम भी जो है बोला जाने से पुलिस डिपार्टमेंट आप लोगों की तरह ही हम भी विक्टिम भी है कहा जाने से, क्योंकि हमको जो है 2013 में री अलॉटमेंट किया है। तो री अलॉटमेंट करने के बाद हमारा जो अलॉटेड जो जमीन है
30,75,980 स्क्वायर मीटर है। तो मेरा फर्ज बनता है मेरा जमीन को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इसमें जो है अभी मेरा कागज तगिया सर और सौरंग सर भी बोला है, और अभी निकिया सर का भी एडवोकेट बोला है कि चीज जो है डॉक्यूमेंट्स को अगर सर टेक्निकलिटीज में जाने से केस ऑब्वियसली सॉल्व नहीं हो सकता, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स को अगर हम देखने से कागज में अगर यह लिखा होने से हम उसको अकॉर्डिंगली रिप्लाई कर सकते हैं डिपार्टमेंट को डिस्कस करके। लेकिन हमको आज जो है कोई भी एडवोकेट जो है हमको कागज नहीं दिया, तो कागज नहीं देने से हम डिपार्टमेंट को डिस्कस करके सही तरीके से बात को सोल्व नहीं कर सके। इन सेंस कि हमारा डिपार्टमेंट ये चाहता है, और ये डिपार्टमेंट जो है इस पॉइंट्स में हम लोग जो है रिप्लाई करना है बोल के हम अभी बात नहीं कर पा रहे, क्योंकि कागज नहीं होने से हम भी मतलब डिपार्टमेंट का थ्रू हम जाना पड़ेगा, अपने आप से हम नहीं बोल पाएगा। तो इसलिए सर थोड़ा टाइम देने से थी। आप लोग सभी आया, कुछ गामुरा भी था, कोई पंचायत लीडर भी अभी आया हुआ है। और जमीन का केस जो है आप सभी को मालूम है टाइम लगता है, लेकिन हम कोशिश करेगा कि इसको जितना जल्द होगा उतना ही अच्छा होगा बोल के कोशिश फैसला करेगा। और अभी हमारा जो पुलिस डिपार्टमेंट का एडवोकेट आप लोगों को बता दिया, और हम आगे भी बोला यहाँ जितना भी एडवोकेट आया हुआ है आपका कागज को आज का अंदर में जेरोक्स करके आज ही दे दीजिएगा एडवोकेट को आप लोग, और कुछ नया बात भी होने से भी वो हमको दे दीजिए और उनको भी दे दीजिए। हम लोग नेक्स्ट फ्राइडे को, तो नेक्स्ट फ्राइडे इज इट ओके? कितना टाइम चाहिए आपको? 1 मंथ। तो हम तो ट्रांसफर होके चला जाएगा। तो कौन आया था? सुनिए, आप लोग जाइए। नहीं, ठीक है। आप लोग का एडवोकेट हम लोग बात कर रहा है, ठीक है? नहीं, सी क्या अबे नो अरे नो कभी बोलो कर दो वो कम जो कोई अल्लाह दो आता ऐसा मत सोचो। अभी एडवोकेट लोग जितना बात कर रहा है, पुलिस क्या बात कर रहा है, हम तो आजकल तो गूगल मैप भी है ना, किसका खेती था, किसका घर था, वो हम लोग पूरा चेक करेगा। आप लोग इसको चिंता मत करो। तो आप लोग ऐसे करो, ये दोनों डेट फिक्स हो गया दोनों का, सब लोग का हो गया। तो नहीं आप लोग का ये क्या बोलता है, एडवोकेट लोग आपस में डिस्कस कर लिया है। 2 मार्च को सैटरडे को हम लोग इधर ही आएगा, तो उस दिन ये करेगा। नहीं एक्सटेंड नहीं होगा, एक्सटेंड बिल्कुल नहीं होगा, एक्सटेंड नहीं होगा। आप लोग पहले 9 बजे आएगा, उस दिन को 9 बजे आएगा, हम पूरा घूमेगा 9 बजे से लेके 11 बजे तक घूमेगा, 2 घंटा हम पूरा घूमेगा। उसका बाद 11 बजे से आज का जैसे इधर बैठ के बात करेगा। इसलिए आज के लिए हमारा कोर्ट यहाँ खत्म होता है। आप लोग सभी को धन्यवाद, बहुत शांति से
प्लास्टिक को उधर छोड़ के जाने से केस में इफेक्ट होगा। फुल पास करेगा, डायरेक्ट पास करते देखेगा जो नहीं लिया